देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुत्तहदा महबूब नगर की खबरनामा अक्से महबूब नगर पेश करते हैं। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सौमु जुन्नह, बुखारी शरीफ। रोज़ा ढाल है। बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। आलमी यौम रेड क्रॉस और तलसीमिया के मौके पर महबूब नगर रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस हॉल में रेड क्रॉस चेयरमैन नटराजन की निगरानी में मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला SPR वेंकटेश्वरू ने शिरकत की। इस मौके पर रेड क्रॉस के बानी जॉन हेनरी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर ख़िराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर ज़िला SPR वेंकटेश्वरू ने कहा कि रेड क्रॉस की खिदमत इब्तदाई दौर में सिर्फ 5 ममालिक तक ही महदूद थीं, लेकिन आज 190 ममालिक में रेड क्रॉस की खिदमत जारी हैं, जो काबिल सताइश है। ज़िला SP ने इस मौके पर महबूब नगर रेड क्रॉस की तारीफ़ करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सिर्फ ख़तरे में रहने वाली जानों को खून ही फराहम नहीं करती, बल्कि दूसरी कई तरीक़ों से इंसानियत की मदद करती है। लिहाजा महकूमा पुलिस का रेड क्रॉस के साथ हमेशा ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर रेड क्रॉस चेयरमैन नटराजन ने रेड क्रॉस की तफसीलात से आगाह किया और साथ ही इस मौके पर आलमी यौम रेड क्रॉस के मौके पर मुनक़िदा इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और मेडल्स दिए गए। So really it's an inspiration for the students. ఎందుకంటే ఒక యూనిఫామ్ లో ఉండేటువంటి ఒక ఆఫీసర్ దగ్గర మెడల్స్ తీసుకుంటున్నారు, సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే రేపటి రోజు భవిష్యత్తులో రేణుక లక్ష్మణ్ సార్ ప్లీజ్ మీరు రండి సార్ ఒకసారి. ఆ రిక్వెస్ట్ కాలంలో దాతృత్వం అంటే ఎంపథెటికల్ గా ఫీల్ కావడం, ఎదుటి వాళ్ళ బాధలను తన బాధగా చేసుకుని దాన్ని పరిష్కార మార్గాలకు కృషి చేయడం, ఇలాంటి దాతృత్వాన్ని ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తున్న సొసైటీ అది ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ముందు వరుసలో ఉంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత వాతావరణంలో పొల్యూషన్ పెరిగి ప్రపంచీకరణ జరిగిన తర్వాత ప్రజల్లో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. తర్వాత ఆబ్వియస్గా కాలుష్యం పెరగడం వల్ల రక్తం యొక్క అవసరాలు కూడా ఎక్కువైనాయి. అందరూ కూడా ఎనీమిక్గా మారడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచాన్ని మొత్తం కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఆదుకున్నదంటే అప్పట్లో కూడా రెడ్ క్రాస్ సంస్థనే. 1948 మే 8వ తారీఖు నుంచి హెన్రీ డ్యూనాంట్ గారి పేరు మీద మనము రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. 1919లో అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కాలంలోనే ఇలాంటి ఈ రక్త నిధి సేకరణ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఆలోచన చేసిన వ్యక్తి ఇతను. మరి అతని యొక్క ఆశయ సాధన కొరకు నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 190 దేశాలు మొట్టమొదట రెడ్ క్రాస్ సొసైటీని పెట్టినప్పుడు కేవలం 5 దేశాల్లో మాత్రమే ఉంది. ముఖ్యంగా ఇటలీ, జపాన్, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, తర్వాత US, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఈ 5 దేశాలలో మాత్రమే రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఉండేది. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 190
రాష్ట్రాలలో ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ విధులు సమర్థవంతంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి. మన భారతదేశంలో కూడా చాలా బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రెడ్ క్రాస్ రక్తనిధి సేకరణ చేస్తూ ప్రభుత్వ బ్లడ్ బ్యాంకులకు సమాంతరంగా ఈ యొక్క బ్లడ్ను వీళ్ళు అవసరమైన వారికి సరఫరా చేస్తున్నారంటే అతిశయోక్తి లేదు. అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్లో ఆర్గనైజంను నడుపుతూ సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారని తెలవడంతో చాలా సంతోషదాయకం. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా రెడ్ క్రాస్ సంస్థకు సంబంధించి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తాము. ముఖ్యంగా కోవిడ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విలయతాండవం చేస్తున్న ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో సెకండ్ వేవ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సమయంలో చాలామంది ఆక్సిజన్ కొరతతో బాధపడుతున్నారు, చాలామంది ఎనీమియాతో బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు రక్తం యొక్క అవసరం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మరి ఇలాంటి సమయంలో రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు ఏమైనా ముందుకొచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు పెడతామంటే ఖచ్చితంగా మా పోలీస్ వైపు నుంచి మేము సహకారాన్ని అందజేస్తాము. నాకు ఈ మంచి అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నెంబర్ 1లో ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఒక ఆర్ఫనేజ్ 2005 నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సార్. దాని తర్వాత 2018లో మెంటలీ ఛాలెంజ్ స్కూల్ కూడా ఒక 40 మెంబర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టాం. అట్లాగే 2019లో డెఫ్ అండ్ డమ్ స్కూల్, ఇట్లా 3 స్కూల్స్ ప్లస్ బ్లడ్ బ్యాంక్. ఏ రెడ్ క్రాస్ కూడా 2 రాష్ట్రాలు లేవు సార్. ఎవరికైనా ఉన్న బ్లడ్ బ్యాంక్లో కార్పొరేట్ కానీ 4 హోమ్స్ నడుపుతున్నది కూడా ఓన్లీ మహబూబ్ నగర్. ఇంతమంది సపోర్ట్ కొని జరుపుతున్నాం. దాంట్లో ఇంకా చెప్పాలంటే యూత్ రెడ్ క్రాస్ ఒకసారి నిలబడాలి. ఇప్పుడు మీ సహకారం అనుకోండి, కలెక్టర్ గారు, రెవెన్యూ పోలీస్ తోటి 10,732 యూనిట్ల బ్లడ్ కలెక్ట్ చేశాం సార్. అంతకు మేము 2019లో 8,000 చేస్తే కరోనాలో 10,000 చేశాం. అది కూడా 100% మీ పోలీస్ వారి సహకారం. దాంట్లో 60-70% ఉందని చెప్పడానికి గర్విస్తున్నాను సార్. ఈరోజు మా రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ఎన్టీ డోనాస్ గారి బర్త్డే. వారు 1919లో మన రెడ్ క్రాస్ స్థాపించారు. తదనంతరం 1932లో వారికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ఈరోజు ఆయన ఘనంగా ఇండియా మొత్తం, ప్రపంచ మొత్తం కూడా ఇండియా రెడ్ క్రాస్ జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు పిలువగా వచ్చి మీకు మరొకసారి నమస్కారం తెలుపుతూ जिला महबूब नगर मुस्तखर में पुलिस ने छापा मारते हुए इजाफी कीमतों में ऑक्सीजन गैस फरोख्त करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया। महबूब नगर 2 टाउन सीआई सोम नारायण सिंह के मुताबिक जिला मुस्तखर के मोटर लाइन के करीब ब्लैक में ऑक्सीजन गैस की इजाफी रकम से फरोख्त करने की इत्तला मौसूल होने पर ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की निगरानी में छापा मारा गया। इस दौरान 33 सिलेंडरों को जब्त कर लिया, जिनमें 7 किलो, 5 किलो और 3 किलो के सिलेंडर मौजूद थे। इन जब्त किए हुए सिलेंडरों को 2 टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद सूबे तेलंगाना की जानिब से बिला तफरीक मसलक 150 उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा और मौज़िनीन के दरमियान ईद किट्स, कपड़े और नकद हदियों की तक़सीम। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अज़हर क़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की ज़ेर निगरानी में आने वाले ईद के मौके पर शहर तांडूर और मौज़ात उताल्लुक़ात की 150 उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइम्मा और मौज़िनीन के दरमियान फ़ीकस ईद की ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल ईद किट्स, फ़ीकस एक जोड़ा उम्दा कपड़े और नकद रकम तक़सीम की गई। वाज़ेह है कि इस तक़सीम में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले आइम्मा मौज़िनीन को शामिल किया गया। नीज़ अतराफ़ व अकनाफ़ के देहातों में कसम पुरसी के आलम में दीनी खिदमात अंजाम देने वाले और मसाजिद के आइम्मा मौज़िनीन की भी बड़ी तादाद शामिल हैं। इस मौके पर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद ने इन तमाम मुआविनीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। आज आखिर अशरे की तीसरी ताक़रात है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुसलमानों ने तकरीबन रमज़ान गुजारा और अल्लाह का फ़ज़ल है कि जितना मुमकिन हो सका हमने इबादतें भी की। अभी बचा हुआ रमज़ान है। मुसलमानों से गुजारिश है कि अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है रमज़ान, उसकी खूब कदर करें और ताक़रातों का ख़ास अहतमाम करें। से पूरी दुनिया कोरोना के महामारी से जूझ रही है, जिसमें
सबसे बड़ा असर मुसलमानों की इबादत की तरह, मजहबी कामों की तरह मालिया पर बहुत बड़ा पड़ा है। बिज़नेस बहुत सौ के मुतासिर हुए हैं। तकरीबन साल 1.5 साल से खुसूसन मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि इस आने वाली ईद को भी सादगी से मनाएं और जितना मुमकिन हो सके अपने लिए जो ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें, जितना मुमकिन हो सके अड़ोस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को भी खुशी में शामिल करें। खुसूसन इस पैंडमिक के ज़माने में हमने मेडिकल लाइन पे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। और अब चूँकि रमज़ान का बिल्कुल आखिर वक्त है, बहुत बड़ी तादाद उलमा की है। उलमा हमारे दीन की एक शान है और उलमा की कदर करना ये हमारे इस्लाम की कदर करना है। इसीलिए जमीयत उलमा ने यह इरादा किया कि खुसूसन उलमा के इकराम में कुछ रमज़ान की तैयारी के लिए कुछ मालिया का अतिया हो और उनके लिए एक जोड़ कपड़े और इसी तरीके से कुछ रमज़ान के लिए मुनासिब उनके लिए हदिया तैयार करने का इरादा किया है कि ये तकरीबन हम 150 से ज़ायद उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के लिए अब तक इंतज़ाम किए हैं और इरादा है कि इंशाअल्लाह जिस के लिए भी मुमकिन हो सके हम इंशाअल्लाह हम अपनी ईद में सबको शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, जिन लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी दुआओं की गुजारिश है। और ये जमीयत उलमा की एक शान है कि वह हर उम्मत के मुसीबत को और इंसानियत की मुसीबत को हर वक्त बर वक्त समझती है और उसके लिए कोशिश करती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म करे और हमारी इस छोटी सी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले। चूँकि इंसानियत की खिदमत करना ये दीन का बहुत बड़ा शेवा है। अल्लाह इसके लिए भी हमको कबूल फ़रमा ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। शादी ब्याह हो या ईदो त्यौहार, मियारी हो नित नए डिज़ाइन के जेवरात के साथ साथ रंग बिरंगी डिज़ाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज़ बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। गरारे, शरारे, लॉन्ग फ्रॉक, अनारकली कुर्ती और ब्राइडल वेयर के साथ कॉटन की सूट, अनस्टिच ड्रेस मटेरियल और मुनफरिद रंग और डिज़ाइन वाले मलबूसात वाजिबी दाम पर दस्तयाब हैं। सिर्फ और सिर्फ बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल पर। फिर देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाएं। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। हमारा पता बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, न्यू टाउन, महबूब नगर। जिला रंगारेड्डी के जेवरला मंडल के हाथे में वाक़े पामीना मौजे में एमपीटीसी सत्यानारायणाचारी, टीआरएस यूथ सदर तिमुलापल्ली विनोद कुमार, सरपंच मुल्ला रेड्डी की निगरानी में कोरोना वबा के पेश नज़र मास्क और सैनिटाइज़र को तकसीम किया गया। बाद अज़ां कोरोना वबा के तय मौजे के आवाम में शऊर बेदार किया। इस मौके पर एमपीटीसी सत्यानारायण ने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर पहली लहर की बनिस्बत तेज़ी के साथ फैल रही है, लिहाजा हर शख्स को कोरोना ज़वाबित पर अमल करते हुए इस वबा से महफूज रहने की अपील की।
जिला विकाराबाद के तांडूर बल्दिया के हल्के वार्ड नंबर 18 खदीम तांडूर, जो कि एक पसमानदा इलाका है, आबादी से मुत्तसिल जंगली झाड़ियों का इलाका भी मौजूद है, जहां पर मोरियों का गंदा पानी जमा होने के नतीजे में जंगली जानवरों के अलावा खिंजीर भी अपना बसेरा बना लिए हैं। जंगली जानवर वार्ड की आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोरियों में गंदा पानी जमा होने के सबब मच्छर, मक्खी और दीगर जहरीले जानवरों की कसीर तादाद में अफजाइश हो रही है, जिसके सबब वहां की आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड काउंसलर और तांडूर बल्दिया के लापरवाही के सबब आवाम में शदीद बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर बल्दिया और मुतल्लिका अहदेदारों से दरख्वास्त की कि इस कोरोना वबा के दौरान पाए जाने वाले नाक़िस सफाई पर तवज्जो देकर आवाम की सेहत को बरकरार रखें और दीगर मौसमी अमराज से महफूज रखने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।